Hello students, welcome to Gnan Manjri Vidyapeeth online education. I am Abhishek Goswami. I hope that you all are fine and safe at your home. So in the last lecture we were discussing about India, land and people. So in the last lecture we have discussed about three important tribes that have come in our India, like first is Negrito, second is Australoid, and third is the Dravidian. So I hope you understood very well about all these three topics. And today we will discussing about some other type that have come in our India and mingled with India, like Mongoloid, Alpine, Dinaric and Armenoid. So let's get start the topic. So first of all, apart from above, Mongoloid, Alpine, Dinaric and Armenoid tribe were also there in India. So in the last lecture, we have discussed about three important tribes, Negrito, Australoid and the Dravidian. And apart from this tribe, Mongoloid, Alpine, Dinaric and Armenoid tribe were also there in India. So ये सभी ट्राइब हमारे इंडिया में देखने को मिलती थी. So first of all we will see about Mongoloid tribe. So Mongoloid tribe came to India from North China via Tibet and settled down at North Assam, Sikkim, Bhutan and West Bengal etc. So origin of Mongoloid tribe की बात करें तो North China, वहां से ये सभी आए थे वाया तिब्बत और नॉर्थ आसाम, सिक्किम, भूटान एंड वेस्ट बंगाल में सेटल हुए. दे ग्रेजुअली इंडियनाइज्ड themselves. देन पूरे इंडिया में ये सभी बसने लगे थे. पहले आसाम, सिक्किम, भूटान और वेस्ट बंगाल में हमें देखने को मिलते थे, बट धीरे धीरे पूरे इंडिया में ये सभी बसने लगे. Mongoloid people possessed the physical characteristics like yellow complexion, flat face, chubby cheeks, almond shaped eyes. So Mongoloid people की बात करें, उसका गेटअप कैसा था, उसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक कैसे थे, तो बात करें येलो कॉम्प्लेक्शन. कॉम्प्लेक्शन मीन्स कलर, उसका स्किन का कलर हमें येलो जैसा देखने को मिलता था. देन फेस की बात करें तो फ्लैट फेस था. देन चबी चिक्स, गाल थोड़े चबी मीन्स थोड़े ज़्यादा गोल मटोल हम कह सकते हैं गुजराती में, तो चबी चिक्स. देन आमंड शेप आइस थी, बादाम के आकार जैसी आइस. ये सभी कैरेक्टर है Mongoloid people के. Then having yellow complexion, Mongoloid were also known as Kirat. So yellow color उसकी स्किन का था, इसीलिए हम Mongoloid people को किरात people भी कहते हैं. So you must remember Mongoloid people is also known as a Kirat. So this is about Mongoloid people. So once again I repeat all the point. So first of all, origin of Mongoloid people is from North China. Then they came to India via Tibet and settled down at North Assam, Sikkim, Bhutan and West Bengal. Then Mongoloid people possessed the physical characteristic like yellow complexion, flat face, chubby cheeks and almond shaped eyes. And having yellow complexion, that's why Mongoloid people were also known as a Kirat. So you must remember this all point. Then let's see about Alpine, Dinaric and Armenoid people. So these people migrated from Central Asia. So the origin of Alpine, Dinaric and Armenoid is from Central Asia, and all these three tribes have similarity. मीन्स ये तीनों ट्राइब के बीच में हमें काफ़ी सिमिलरिटी देखने को मिलती थी. Then the origin of this tribe are found in a large number in Gujarat, Saurashtra, Maharashtra, Bengal and Odisha. Odisha formerly known as Orissa. So origin की बात करें अल्पाइन डिनारिक आर्मेनोइड की, ये सेंट्रल एशिया में. बट आज की बात करें, आज गुजरात, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, बंगाल एंड ओडिशा, यहाँ पर
अल्पाइन डिनारिक एंड आर्मेनोइड पीपल जैसे कैरेक्टरिस्टिक हमें देखने को मिलते हैं। सो अल्पाइन डिनारिक एंड आर्मेनोइड पीपल के जैसे सिमिलैरिटी रखते हैं गुजरात, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, बंगाल एंड ओडिशा के पीपल। सो दिस पॉइंट यू मस्ट रिमेंबर। Then fifth important tribe is the Aryans. The Nordic Aryans were the creators of Aryan civilization in India. So Aryan people are also known as a Nordic. So they all are the creators of Aryan civilization in India. Hindu were called Aryan in the ancient time, and the area where they were densely populated was called आर्यवर्ता। सो आज की रिलीजन की बात करें, हिंदू रिलीजन, हम ऐसा मानते हैं कि हिंदू रिलीजन के पीपल आर्यन पीपल थे। आर्यन पीपल से ही हिंदू रिलीजन की शुरुआत हुई थी। सो हिंदूज वेर कोल्ड आर्यंस इन द एंशियंट टाइम। एंशियंट टाइम में हिंदू आर्यन के नाम से जाने जाते थे। एंड द एरिया वेर दे वेर डेंसली पॉपुलेटेड वॉज कॉल्ड एज आर्यवर्त। जहाँ पर आर्यन पीपल का सर्वाइवल हमें देखने को मिलता है, हम उसको आर्यवर्त नाम देते थे। सो दिस पॉइंट यू मस्ट रिमेंबर। Then as seven rivers were flowing over there, that region was named as Sapta Sindhu. So आर्यन पीपल जहाँ पर सरवाइव करते थे वहाँ पर 7 रिवर की फ्लोइंग हमें देखने को मिलती है, और ये 7 रिवर इसको हम मिक्स करके कहते हैं सप्त सिंधु। सो एज 7 रिवर वेर फ्लोइंग ओवर देयर, दैट रीजन वाज नेम्ड एज सप्त सिंधु। सो ये 7 रिवर में मेन रिवर थी सिंधु रिवर, जिसको हम इंडस रिवर भी बोलते हैं। सो इसी के कारण हम उसको सप्त सिंधु भी बोलते हैं, क्योंकि ये 7 रिवर एक फ्लो में मिलती है इन द इंडस रिवर, सिंधु रिवर पे। इसीलिए हम इस एरिया को भी सप्त सिंधु कहते हैं, क्योंकि आर्यन पीपल यही एरिया में सरवाइव करते थे। इन एंशियंट टाइम द फर्स्ट आर्यन पॉपुलेशन वाज concentrated in the नॉर्थ वेस्ट। सो फर्स्ट आर्यन पॉपुलेशन की बात करें कि ये पॉपुलेशन कहाँ पर थी, सो नॉर्थ वेस्ट साइड पर, मीन्स आज का पंजाब रीजन है, देन जम्मू कश्मीर का रीजन है, देन गुजरात का रीजन है, राजस्थान का रीजन। ये रीजन था फर्स्ट आर्यन पॉपुलेशन का। फर्स्ट आर्यन पॉपुलेशन यहाँ पर हमें देखने को मिलती थी। The area of Aryavarta was extended up to Mithila. It is in Bihar in the east, and in south it spread up to Vindhyachal during the post-Vedic period. So first of all हमें आर्यन पॉपुलेशन नॉर्थ वेस्ट की ओर देखने को मिलती थी, बट धीरे धीरे उसका एक्सटेंशन हुआ and the area of आर्यवर्ता was extended up to मिथिला। मिथिला हमें बिहार में देखने को मिलता है, मीन्स ईस्टर्न साइड पे बिहार तक ये पॉपुलेशन आगे बढ़ी थी। देन साउथ की बात करें तो इट स्प्रेड अप टू विंध्याचल। विंध्याचल मीन्स मिडल इंडिया। करंट इंडिया की बात करें तो जो भी मिडल इंडिया वाला पार्ट है, मध्य प्रदेश वाला पार्ट, यहाँ तक हमें आर्यन पॉपुलेशन देखने को मिलती थी during post-Vedic period. Then they were more advanced people than any other contemporary tribes. मीन्स ये सभी काफ़ी एडवांस थे, उसके समकालीन जो भी ट्राइब थी उससे काफ़ी एडवांस चल रहे थे। The vast land was recognized with various names as Bharat Bhumi, Bharat Khand and Bharat Varsha after the name of King Arya, Bharat और भरत कुल ट्राइब। सो हम बात करें आर्यन पीपल, उसके टाइम में इंडिया को हम कहते थे भारत भूमि, भारत खंड, भारत वर्षा। मीन्स भारत नाम है ये, एक किंग थे आर्य भरत, जिसके नाम के ऊपर से भारत नेम का ओरिजिन हुआ था। एंड भारत कुल ट्राइब, ये दो हमें पॉसिबिलिटी देखने को मिलती है, या फिर या तो द किंग आर्य भरत, उसके ऊपर हमारे इंडिया का नाम भारत पड़ा, या फिर भरत कुल एक ट्राइब थी।
ये दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन राइट है फॉर भारत नेम. सो यू मस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट. Then let's see about some other characteristic of Aryan people. So Aryans were nature lovers. Aryan people nature lover थे, means प्रकृति प्रेमी थे. Then they loved and worshipped the trees, the rivers and the mountains, the sun and the wind and the rain. ये सभी नेचर को काफ़ी वर्शिप देते थे, मीन्स काफ़ी सम्मान देते थे. ट्रीज को पूजते थे, देन रिवर्स को एक भगवान की तरह पूजते थे, माउंटेन्स को, सन को, विंड को, रेन को, ये सभी थिंग को पूजते थे. एंड रियल में ये सभी थिंग्स को हमें पूजना चाहिए, हमें उसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वी ऑल आर डिपेंडेड ऑन दिस थिंग. लाइक वी ऑल आर डिपेंडेड ऑन ट्रीज, डिपेंडेड ऑन द रिवर्स, डिपेंडेड ऑन द माउंटेन्स, डिपेंडेड ऑन द सन, विंड एंड रेन. हम ये सभी थिंग्स पे डिपेंडेड है, हमें उसका सम्मान रखना चाहिए, हमें उसको एक भगवान की तरह पूजना चाहिए. And they had composed hymns for praying to various natural element. मीन्स ये सभी ने हाइम्स को कंपोज किया था, मीन्स बनाया था. हाइम्स मीन्स सिंपल सी बात करें तो श्लोक, जिसको हम कहते हैं हाइम्स. सो ये सभी ने हाइम्स बनाए थे फॉर द प्रेइंग टू वेरियस नेचुरल एलिमेंट. मीन्स ये सभी नेचुरल एलिमेंट है, उसको प्रार्थना करने के लिए, उसकी प्रेयर करने के लिए ये पीपल ने हाइम्स भी कंपोज किए थे. Then in due course of some religious ceremonies like recitation of Vedas, performing yajna and other activities become prevalent in India. So आर्यन पीपल की बात करें तो उसके टाइम में हमें कुछ रिलीजियस सेरेमनीज देखने को मिलती थी, लाइक रेसिटेशन ऑफ वेदास, मीन्स जो भी वेद थे, 4 वेद थे, उसका पठन करना, उसको रीड करना, जिसको हम कहते हैं रेसिटेशन. एंड परफॉर्मिंग यज्ञ, यज्ञ की जो सेरेमनी है ये हमें आर्यन पीपल से देखने को मिलती थी. देन अदर एक्टिविटीज बिकम प्रीवेलेंट इन इंडिया. ये सभी एक्टिविटी अभी भी काफ़ी प्रीवेलेंट है. प्रीवेलेंट मीन्स काफ़ी प्रचलित है, फेमस है. देन there was a fine amalgamation of those tribes with their specific style of living, and harmonious culture was formed, which gave India a glorious and prosperous heritage. So ये सभी पीपल एकजुट होके रहते थे. एमालगेमेशन मीन्स एकजुट होके रहना. So there was a fine amalgamation of those tribes with their specific style of living and harmonious culture. What is the meaning of harmonious culture? Harmonious means तालमेल बनाना, एक संतुलन बनाना. तो ये भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है. आर्यन पीपल नेचर को काफ़ी लव करते थे, मीन्स प्रकृति प्रेमी थे, काफ़ी नेचुरल एलिमेंट को वर्शिप देते थे. तो हारमोनियस कल्चर है, एक संतुलन सा बना हुआ है. बट आज की बात करें तो हम नेचर पे कम ध्यान देते हैं. हम क्या कर रहे हैं, डिफोरेस्टेशन हो रहा है, पॉल्यूशन काफ़ी बढ़ रहा है, ग्लोबल टेम्परेचर काफ़ी बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है. तो हम हमारे नेचर को इतना वर्शिप नहीं देते, हम इतना सम्मान नहीं देते. बट आर्यन पीपल की बात करें, उसकी एक स्पेशलिटी थी कि वो नेचर को एक सम्मान देते थे, नेचर को एक वर्शिप की तरह पूजते थे. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और हमें हिस्ट्री में से यही एडवाइस लेनी है कि जो भी पहले की ट्राइब थी, पहले के पीपल थे, ये क्या कर रहे थे, और हमें उसमें से सीखना है और हमें हमारे लाइफ में उसको अपनाना है. सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द हिस्ट्री. एंड आर्यन पीपल की बात करें तो आर्यन पीपल ने हमारे कल्चर को काफ़ी प्रॉस्परस बनाया है और काफ़ी ग्लोरियस बनाया है. सो दिस इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्यन पीपल इन अवर हेरिटेज एंड इन अवर कल्चर. Then these foreigner and Indian tribes amalgamated in a such way over a long period of time, they lost their individual identity through the intercaste marriages. So
मेन ट्राइब हमारे इंडिया में तभी सरवाइव कर रही थी आर्यन, बट फॉरेन पीपल भी हमारे इंडिया में आते थे, फॉरेन ट्राइब्स भी हमारे इंडिया में सरवाइव करती थी। सो ये सभी ट्राइब्स एक दूसरे में एमालगेमेटेड हो गई, एक साथ मिल गई, एंड ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ, ये सभी ने अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को खो दिया था, क्योंकि इंटरकास्ट मैरिज तभी काफी प्रीवेलेंट थे। सो यू मस्ट रिमेंबर कि मेन हमने देखा कि नेग्रिटो पीपल जिसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे, देन ऑस्ट्रेलॉइड द्रविडियन के काफी कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे, देन मंगोलॉइड, अल्पाइन, डिनारिक, ये सभी पीपल की कुछ स्पेशलिटी थी। बट क्या हुआ कि ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे ये सभी ट्राइब एक दूसरे के साथ मिल गई, और मेन रीजन था इंटरकास्ट मैरिज। इससे क्या हुआ कि उसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी लॉस्ट हो गई, क्योंकि इंटरकास्ट मैरिज के कारण क्या हुआ कि दो डिफरेंट ट्राइब उसके बीच में मैरिज हो रहा है, सो इंडिविजुअल आइडेंटिटी लॉस्ट हो गई थी ड्यू टू द इंटरकास्ट मैरिजेस। Then outsiders and local people were greatly influenced by language, script, names, and religious belief, played a vital role in Indianizing these foreigner. So बाहर के people की बात करें और local people, ये सभी हमारी लैंग्वेजेस, स्क्रिप्ट, नेम्स एंड रिलीजियस बिलीफ के कारण काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए थे, और ये थिंग्स ने ये सभी पीपल को इंडियनाइजिंग बनाने के लिए काफ़ी वाइटल रोल प्ले किया था। मीन्स हमारा इंडियन कल्चर काफ़ी प्रोस्परस था, काफ़ी नॉलेजफुल था, डिफरेंट पीपल फॉरेनर्स भी हमारे इंडिया में आते थे और कुछ नॉलेज गेट करते थे। सो इसी के कारण फॉरेनर भी हमारे इंडिया में इंडियनाइजिंग हो गए, इंडियनाइजिंग मीन्स इंडियन हो गए थे। सिंस एंशियंट टाइम a composite culture has been created in India। So ancient time से ही डिफरेंट टाइप्स के पीपल हमारे इंडिया में रहते थे, और आज की बात करें तो आज भी हमें डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट टाइप के पीपल हमें देखने को मिलते थे। सो ये शुरुआत हो गई थी सिंस एंशियंट टाइम। यहाँ से ही हमें फॉरेनर, देन लोकल पीपल, ये सभी हमारे इंडिया में रहते थे, और ये सभी एमालगेमेटेड थे, मीन्स ये सभी एकजुट होके रहते थे। देन दे ऑल देन बिकम इंडियंस। क्या हुआ देन, ये सभी पीपल इंडियन बन गए, एक एक कंट्री बना इंडिया, और एक कंट्री में डिफरेंट टाइप के पीपल सरवाइव करने लगे। इन शॉर्ट, इन एंशियंट इंडिया द amalgamation of various cultures enrich Indian culture by making it variegated and prosperous। सो डिफरेंट कल्चर एक साथ एमालगेमेटेड हुए, मीन्स एक साथ मिलजुल के एकजुट के रहे। इससे क्या हुआ, हमारा कल्चर काफ़ी प्रॉस्परस और काफ़ी वेराइड बना। So in this video we have discussed about some remaining important tribe. Like first of all we have discussed about Mongoloid people, then also we have discussed about Alpine, Dinaric and Armenoid people, and in the last we have discussed about Aryan people, and in the last we have discussed about some important characteristic of our Indian culture. So I hope you understood very well about this topic, and let's move to our next topic. Our next topic is preservation and conservation of heritage. So let's get start the topic. So first of all, what is preservation and what is conservation? प्रिजर्वेशन क्यों करना है, कंजर्वेशन क्यों करना है? हमने नेचुरल रिसोर्सेज में भी देखा था कि कंजर्वेशन मीन्स जो भी थिंग स्कैरसिटी में, जो भी थिंग काफ़ी खतरे में, इसको हमें बचाना है। तो यहाँ पर बात चल रही है हेरिटेज की। हेरिटेज को हमें बचाना है, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, आजकल पीपल नेचर लवर नहीं है, हमारे नेचर को इतना सम्मान नहीं मिलता। देन हम बात करें हेरिटेज प्लेसेस है जिसको काफ़ी नुकसान हो रहा है, पीपल उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। सो हमें क्या करना है, उसको बचाना है, प्रिजर्वेशन करना है। हमारा कल्चर है, हमारा हेरिटेज है, उसको हमें बचाना है। सो
Each aspect of Indian heritage made India eye-catching, picturesque and attractive. सो हमारे इंडियन हेरिटेज के सभी एस्पेक्ट की बात करें तो हमारा इंडियन हेरिटेज आई कैचिंग है, मीन्स हमारी आई अट्रैक्ट होती है टू द हेरिटेज। देन पिक्चर्स क्यों काफ़ी ब्यूटीफुल हमारा कल्चर है। देन एट्रैक्टिव, सभी पीपल अट्रैक्ट होते हैं टुवार्ड्स अवर इंडियन कल्चर। देन हेरिटेज ब्रॉड ग्लोरी टू द नेशन। हेरिटेज की बात करें तो हेरिटेज हमारे नेशन को ग्लोरी देता है। इंडिया अटेंड अ लीडिंग पोजीशन इन द वर्ल्ड बाय कीपिंग इट्स हेरिटेज प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व। सो इंडिया की बात करें तो हेरिटेज को बचाने में, हेरिटेज को प्रिजर्व करने में इंडिया लीडिंग पोजीशन पे है। अव्वल नंबर पे हमारी इंडिया की रैंक देखने को मिलती है इन अबाउट प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज। Thus, it is the primary and pious duties of every citizen of India to see that nobody harms the ancient memorials and also to preserve places having historical importance and values. So ये हमारी प्राइमरी और पायोस ड्यूटी है कि हमें हमारा कल्चर को बचाना है, एंशंट मेमोरियल है उसको हार्म नहीं पहुंचाना है। देन जो भी प्लेसेस जिसका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, वैल्यूज है, उसको हमें बचाना है। सो दिस इज द अवर प्राइमरी एंड पायोस ड्यूटी। इन अवर constitution the fundamental duties of Indian citizen are mentioned in article 51A, in that 6, 7 and 9 describe the following duties for the preservation of our culture heritage। सो हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तो यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज का एक सेक्शन है और यहाँ पर इंडियन सिटीजन की फंडामेंटल ड्यूटीज को मेंशन किया है। एंड प्रिजर्वेशन ऑफ आवर कल्चरल हेरिटेज का टॉपिक देखें तो ये टॉपिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 51A में हमें देखने को मिलता है। एंड 51A में 6, 7 एंड 9 वाली कॉलम में यहाँ पर हमें प्रिजर्वेशन ऑफ आवर कल्चरल हेरिटेज का टॉपिक देखने को मिलता है। सो लेट्स सी अबाउट सम स्टेप फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ आवर कल्चरल हेरिटेज। So first point is to understand the importance of our harmonious culture, prosperity and preserve it। सबसे पहले क्या करना है, हमारा कल्चर है उसको जानना है, हमें हमें उसका इम्पोर्टेंस पता लगाना है। सो टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर हारमोनियस कल्चर, अगर हमें पता ही नहीं है कि ये कोई भी प्लेस है उसका इम्पोर्टेंस क्या है तो हम उसको प्रिजर्व कैसे करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, हमें हमारी हिस्ट्री, हमारे कल्चर के बारे में पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है। देन हमें उसको प्रिजर्व करना है, उसकी रक्षा करनी है। देन मेंटेन द फॉरेस्ट, टैंक्स, rivers, ponds and the wild animals and birds along with maintaining the natural environment and to show compassion for all the living creature। सो हम बात करें नेचुरल थिंग लाइक फॉरेस्ट, टैंक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स एंड वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स, ये सभी को हमें बचाना है, उसको हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है क्योंकि ये सभी थिंग्स हमारे कल्चरल हेरिटेज को काफ़ी रिप्रेजेंट करते हैं। और टू शो कंपैशन फॉर ऑल द लिविंग क्रिएचर, हमें सभी लिविंग क्रिएचर के प्रति दया भाव रखना चाहिए, कंपैशन रखना चाहिए। Then the protection of public property and giving up violence are also included in it। क्या करना चाहिए, पब्लिक प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन करना चाहिए और वायोलेंस ना हो ये हमें ध्यान रखना है क्योंकि पब्लिक प्रॉपर्टी जब भी वायोलेंस होता है तभी पब्लिक प्रॉपर्टी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। सो हमें पब्लिक प्रॉपर्टी मीन्स जो बसेस है, रेलवेज है, देन जो भी टेलीफोन सर्विस है, हमें उसको नुकसान नहीं पहुंचाना है, हमें उसका प्रोटेक्शन करना है। सो thus nature has created beautiful landscape
We should maintain the purity, sanctity, beauty of these places, considering it to be a moral duty. So नेचर एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप है, नेचर ने हमें काफ़ी एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप दी है, तो हमें क्या करना है, उसका हमें मेंटेनेंस करना है, हमें उसको बचाना है, हमें उसको इसकी जो ब्यूटी है उसको बचानी है, प्रोटेक्ट करनी है. सो दिस इज अवर मोरल ड्यूटी. Then the Indian heritage is an outcome of development of the people of over a long period of time. इंडियन हेरिटेज की बात करें, काफ़ी वास्ट हिस्ट्री हमारे इंडियन हिस्ट्री है, और इंडियन हेरिटेज भी हमारा काफ़ी वेराइड और काफ़ी बड़ा है. हम बात करें लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन टू टिल, इतना टाइम पीरियड हमारा इंडियन हेरिटेज का देखने को मिलता है, और इस पीरियड के दौरान काफ़ी डेवलपमेंट हमारे कल्चर में देखने को मिलता है. देन नेचर हैज़ generously donated abundant प्रॉस्पेरिटी टू इंडिया, एंड नेचर ने भी काफ़ी सपोर्ट किया है. नेचुरल थिंग हमारे इंडिया में काफ़ी देखने को मिलती थी, आज भी नेचुरल थिंग काफ़ी ज़्यादा है, तो ये भी हमारी प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है. Then India achieved invaluable opportunity in all the fields for gradual development due to India's peculiar natural structure. So इंडिया की बात करें तो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे इंडिया को है फॉर अ ग्रेजुअल डेवलपमेंट, क्योंकि हमारी नेचुरल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये काफ़ी पिक्यूलर है, काफ़ी वेराइड, काफ़ी विचित्र, काफ़ी इम्पोर्टेंट नेचुरल स्ट्रक्चर है. हमारे इंडिया में ऑलमोस्ट सभी जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, तो ये हमें एक अपॉर्चुनिटी देता है फॉर द ग्रेजुअल डेवलपमेंट of our country. So in this way, the Indian heritage is a result of development of people of India in the social, economical and political and cultural field over centuries. So इसी तरीके से हमारा इंडियन हेरिटेज की बात करें तो इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पीपल ऑफ इंडिया इन सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल एंड कल्चरल फील्ड ओवर अ सेंचुरी. सो हमने पहले भी देखा था हेरिटेज क्या है. हेरिटेज इज़ अ वैल्यूएबल गिफ्ट फ्रॉम आवर फोर फादर्स टू अस. तो ये हेरिटेज क्या है कि एंशियंट टाइम से लेकर आज तक एंड हमारी फ्यूचर जनरेशन में भी ये कंटिन्यूसली ग्रो करता जाएगा, और इसमें डेवलपमेंट आएगा, चेंजेस आएगा सोशल पैरामीटर में, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल, ये सभी पैरामीटर में यहाँ पर चेंजेस आएगा और काफ़ी डेवलपमेंट भी हमें देखने को मिलेगा. So in this video lecture we have completed our lesson number 1. I hope you understood very well about all the topics of from lesson number 1. So हमने lesson number 1 को complete कर लिया है. आई होप आप सभी को कोई डाउट नहीं होगा, बट कोई भी डाउट हो आप सभी को, आप मुझे कभी भी पूछ सकते हो. सो इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग ऑल द टॉपिक्स यू कैन आस्क मी एनी टाइम. सो नाउ दिस इज एंड ऑफ द वीडियो. यूनिट टेस्ट की बात करें तो यूनिट टेस्ट में मैंने आपको कोर्स बताया था. वंस अगेन मैं आपको बताता हूँ, लेसन नंबर 1 जो आज कंप्लीट हो गया है, सो होल लेसन नंबर 1 यूनिट टेस्ट में होगा. देन लेसन नंबर 8, लेसन नंबर 9 एंड लेसन नंबर 14, ये 4 यूनिट हो गए इन द यूनिट टेस्ट. सो आप सभी वेल प्रिपेयर रहिए. मैं आप सभी को 1 या 2 दिन में फेयरबुक वर्क भी आपको दे दूंगा ऑफ द लेसन नंबर 14 एंड लेसन नंबर 1. आप सभी अपनी फेयरबुक में से भी प्रिपरेशन कीजिए. देन जो भी इंटरनल पार्ट है, मीन्स एमसीक्यू है, फिल इन द ब्लैंक है, ट्रू फॉल्स है, मैच द फॉलोइंग है, ये सभी पार्ट में फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, फ्रॉम द लेसन में से भी आप सबको मैं पूछ सकता हूँ. सो आप सभी को ऑल द टॉपिक रीड करना है. देन एक्सरसाइज में से भी आपको रीड करना होगा. सो बेस्ट ऑफ लक फॉर द यूनिट टेस्ट. नाउ दिस इज एंड ऑफ द वीडियो. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट अनदर लेसन. सो तब तक के लिए
Stay home, stay safe. Thank you.